Ji Kamal, can you hear me? Assalamu alaikum, Kamal. Can you hear me? Waslam, yes, I can hear you. Okay. And we are also live on the page. So let's start. Um, okay. So anyone who's joining the meeting, I'm admitting them as well as all of them are muted. So it's just you and me talking. Um, So they will so be in the listening mode, right? yes. So Yeah, okay. So today's title is Developing and Launching E-commerce Stores and Marketplaces. And the idea was to basically talk about the current scenario in which most retail businesses are closing down and people are planning for moving to the digital or retail mode. So because you have a lot of experience in that area, we wanted to hear you out. I have a bunch of questions for you, but before that, अगर आप अपना थोड़ा Mhm. सा इंट्रोडक्शन करा दें क्योंकि मैं तो आपको जानती हूँ लेकिन बाकी जो लोग सुन रहे हैं Yeah, I'm CEO of Asiano Technologies. We have been in this business, software consultancy and software development for last 8 years. I have a technical background. I am a NAD graduate 18 years ago. Then my career starts from the development, project management, and obviously right now mostly I do uh, system architecturing and guiding the my juniors. But still, I work as a uh, technical person. So we all have been realizing and analyzing mainly what's been going on due to this situation, the virus situation. So before that, even I would say, if we talk about developed countries, um, most of the businesses already going online before this pandemic situation. If we talk about, so बहुत सारे businesses पहले ही जो developed countries हैं उसमें ऑनलाइन जा रहे थे आप अमेजोन की एग्जांपल ले लें या आप बड़े जायंट्स की एग्जांपल ले लें बड़े सुपर स्टोर्स की तो मोस्ट ऑफ द a big chunk of their business actually coming from the online stores they have. So but in the third world country or the countries which people are not very well aware of, you know um, परचेजिंग ऑनलाइन परचेजिंग सो उनमें स्टिल ये ट्रेंड था कि वो रिटेल इंडस्ट्री यानी जाते थे शॉप्स पे और चीजें खरीदते थे बिकॉज दे डोंट हैव द कॉन्फिडेंस कि भाई ऑनलाइन क्या चीज मिलेगी उनको सो दे विल बी more comfortable going over there on the stores and physically checking the stuff what they are going to buy. बट ये चीज अब इस सिचुएशन जो पैंडेमिक सिचुएशन क्रिएट हुई है वायरस की वजह से और जो बिजनेसेस में एक जो ऑनलाइन ही थी उनको ज्यादा सेटबैक लगा इसकी वजह से जो ऑनलाइन स्टोर जो लोग शॉप उनको बहुत बड़ा सेटबैक लगा है सो तो ये दिस इज द राइट टाइम आई वुड से द हाई टाइम एज वेल एज द राइट टाइम कि हम जो भी businesses online nahi hai they should go online, they start selling their products online. Obviously they have the store, they have the retail shops, that those things will keep they will keep doing their business from their stores as well, but they must have their online store as well. So now having the store is not a big deal.
there are a lot of products are available in the market, or a lot of companies giving these type of services. So this is the right time and the high time, I would say. Yeah, I think I have answered your question, the first question, right? Yes, yes, you have. So, so for someone who's new to this e-commerce industry, जिनका अपना कोई retail store है, and they want to get into, uh, on the online model of retailing, Yeah. so उसमें कौन से platforms available हैं, वो कैसे decide करें कि क्या उन्हें pick करना चाहिए, वगैरह वगैरह. That is a very important question. जो भी एक बिजनेसमैन है ना, उसके पास सबसे पहले जो जहन में क्वेश्चन आता है ना, the very basic question comes in the mind of any person who is planning to go online. ये उसमें पहला क्वेश्चन है कि what is the budget needed, what is the platforms available in the market, what other um, pain points I would suffer or I would have when I start selling online. So when we talk about the platform, there are a lot of platforms available. It all depends on um, how the business is planning to go online. Either they are going for a subscription model, like purchasing a store on monthly basis, where there are a lot of companies who provides you know already available built-in store on monthly subscription. So what they need to do, they just purchase it on their subdomains and just change the logos and everything this and start putting their products. That's the very basic approach mostly small businesses are doing. If you have a if you have a bigger business, you can afford your own hosting, you can afford your own some IT expenses, then you should go with your own store, with your own brand, I would say. Okay, so for example, abc.com would be your website, your store URL, and then you will actually build you're gonna build your own store by hiring some IT company or IT consultants, or probably hiring your own team and creating a store. But it needs a big budget. Okay, then but obviously that's you will create your own brand, you will market your own brand. Okay, in this particular scenario, you don't have to pay the monthly rent. Okay, you have all freedom to whatever you want to do. You can add as many features as you want to. On subscription model, you are actually, you can't do that by yourself. Whatever the platform is going to provide you, you have to stick with that on the monthly subscription model, and that is suitable for small businesses only. For companies which have their own product, which are large organizations, they can go with their own stores, I would say. And then there are very small businesses who even can't afford the monthly subscription. The solution for them is actually getting subscription on the marketplaces. There are e-commerce platform which provide sellers to register their products on their marketplace. There are, the example is Daraz, a very mature example. The businesses, there are a lot of sellers actually selling their products using the Daraz platform. So there are we also provide this sort of marketplace where sellers can come and upload their products. So there are three different options. Either you select your store on some platform on this some monthly subscription model. Either you have your own store if you have a if you are a brand, or you can afford it. Or if you are a very small business owner, then you can register yourself as a seller on some marketplace. So these are three options. But in any case, uh, right now this situation is calling or asking everyone to go online, I would suggest. Yeah. Okay, thank you. So मेरे पास दो messages आए हैं. People are asking you to talk in mixed language because I see a lot of Okay. people are Okay. watching it. Okay. Okay. जो next सवाल है मेरा वो ये है कि do you think, जैसे आपने कहा कि custom build करा सकते हैं कोई e-store, so do you think it's a good idea for a small and medium sized store जो अपने आप को growth जो है वो phase में देख रहा है, और उसके लिए क्या ये अच्छा idea है कि वो एक जो है वो custom e-store बना ले? क्या it's do you think it's very complicated for them
to be able to No, no, get no. it made? ये भी पर्सपेक्टिव है. पीपल थिंक के इसमें कोई टेक्नोलॉजी उनको लर्न करनी पड़ेगी या उनको कोई एक दो रिसोर्सेज आईटी बैकग्राउंड की हायर करनी पड़ेंगी. दिस इज नॉट द केस. ये इनिशियली शायद 5 साल पहले होगा और था भी, बट नाउ देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स available which are actually very user friendly. Anyone can actually understand it. सब बहुत आराम से आप उसमें कुछ स्टेप्स हैं जो आपने सीखने हैं. Login आपको registration, login, uploading their products, see, analyzing the dashboard and the the selling graph, किस तरीके से आपके प्रोडक्ट्स कौन कौन खरीद रहा है. तो ये जो भी थोड़ा बहुत कंप्यूटर की नॉलेज रखता हो, ब्राउजर यूज करना जानता हो, everybody right now we know that everybody can use Facebook, everybody can use can access have the access to emails. तो obviously अगर आपको ईमेल यूज करना आती है, आपको फेसबुक यूज करना आता है, तो बिल्कुल सिमिलर वे में आप एक दो ट्यूटोरियल्स देखें, आपको समझ में आ जाएगा. बट स्पेसिफिक टू प्लेटफॉर्म शायद थोड़ा बहुत लर्निंग्स होती हैं. इफ वी गो फॉर शॉपिफाई तो उसकी लर्निंग थोड़ा सा आपको डिफरेंट होगी, या मेजेंटो पे जाएंगे कोई डिफरेंट होगी, वर्डप्रेस पे, क्योंकि वो बेसिकली देखिए एंड टू एंड फ्लो सेम है. बट ऑब्वियसली डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में मॉड्यूल्स को एक्सेस करने के मेन्यूज अलग हैं, उनके फ्लोज अलग हैं. तो आप कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो उसकी इनिशियल लर्निंग जरूर होती है, बट वो लर्निंग आईटी बैकग्राउंड से रिलेटेड नहीं होती, वो मोस्टली कॉमन सेंस से रिलेटेड होती है कि आप जो है वो किस तरह, और वो इनिशियली आप किसी से भी हेल्प ले लें एक दो बार, दैट्स इट. तो वो प्रॉब्लम नहीं है. यू डोंट हैव डू यू इन शॉर्ट यू डोंट नीड एनी टेक्निकल बैकग्राउंड फॉर दिस. राइट, ठीक है. अच्छा, अगर किसी के पास कोई एग्जिस्टिंग ई स्टोर है एंड द पर्सन वांट्स टू कन्वर्ट इट इनटू अ मार्केटप्लेस, सो समथिंग someone who is selling a single brand wants to turn it into a marketplace for similar brands. So do you think ये it's very easy technically, या उनको स्क्रैच से एक नया प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा? इट्स नॉट इजी. द फर्स्ट क्वेश्चन इज उनको मार्केट प्लेस पे जाना ही क्यों है. अगर उसका कोई ऐसी बात है, कोई बिजनेस जस्टिफिकेशन होगी, बिकॉज इफ आई एम सेलिंग my products for my business, obviously I don't want others to upload product on my store. Obviously it's my brand. अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं दूसरों को, दूसरे सेलर्स को ये ऑप्शन दूं कि वो मेरे प्लेटफॉर्म पे आके अपने प्रोडक्ट्स को सेल करें, तो ऑब्वियसली मुझे अपने अपने प्लेटफॉर्म में ये अमेंडमेंट्स, ये चेंजेस करनी पड़ेंगी कि जो बाकी सेलर्स हैं वो उसको लेवरेज करें. उसके लिए टेक्निकली भी अपग्रेड्स चाहिए होती हैं, और उसमें डिफरेंट एडमिन पैनल्स, हर सेलर के लिए सेपरेट एडमिन पैनल देना पड़ता है जो कि अपने प्रोडक्ट्स को एनालाइज करे, वहां से अपलोड करे. सो मार्केट प्लेस इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट. इफ यू टॉक अबाउट टेक्निकली मार्केट प्लेस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट एक प्लेटफॉर्म है. और जो हम अपना स्टोर, इंडिविजुअल स्टोर, अपना ब्रांड बनाते हैं, वो एक बिल्कुल डिफरेंट है. मार्केट प्लेस इटसेल्फ एक यूं समझ लें आपके बड़ा जाइंट कंसिडर कर लें कंपेयरिंग टू द इंडिविजुअल स्टोर. क्योंकि मार्केट प्लेस में आपके पास हंड्रेड्स ऑफ सेलर्स, यू कैन बी हंड्रेड ऑफ सेलर्स, जो हर कोई अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है. उसके अलग डैशबोर्ड्स हैं, हर एक का अपना सेपरेट एडमिन पैनल है. उसकी जो डेटाबेस या जो डेटा आपका टेक्निकली आपके पास आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है. उसमें कंसर्न्स और टेक्निकल प्रॉब्लम्स ही ज्यादा आती हैं. तो इट्स नॉट इजी, आई वुड से, कि आप अपने इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म या इंडिविजुअल ऑनलाइन बिजनेस को जो आप अपने ब्रांड के लिए कर रहे हैं, उसको आप मार्केट प्लेस में, यू कांट कन्वर्ट दैट इजली. या ठीक you need technical people to do this first of all. है, ओके, साउंड्स गुड. अच्छा, कौन सी ऐसी थर्ड पार्टी सर्विसेज हैं जो आपके ख्याल से एक ई स्टोर रन करने के लिए रिक्वायर्ड होंगी? और जब कोई प्लान करता है कि मुझे एक ई स्टोर चाहिए, तो वो कौन सी और सर्विसेज हैं जिसके लिए उसको रजिस्टर करना है, अदर देन जस्ट हायरिंग अ कंपनी? देखें, इसमें आंसर थोड़ा सा रिलेटिवली कि आप किस तरह के मॉडल पे जा रहे हैं उस पर बेस करता है. इफ यू ओन योर ओन स्टोर, इंडिपेंडेंट
स्टोर ऑब्वियसली ये सारी सर्विसेज भी आपको लेनी पड़ेंगी, जिसमें सबसे पहली एक ईमेल की सर्विस होती है थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन में, एसएमएस की सर्विस होती है व्हेन योर ऑर्डर गोज आउट, व्हेन यू परचेज, तो एक ईमेल जाती है, एसएमएस जाता है, फिर जब आपका ऑर्डर प्रोसेस में आता है उस वक्त ईमेल्स और एसएमएस जाते हैं, फिर जब वो शिपमेंट के लिए लॉन्च होता है, फिर जब वो रिसीव होता है, ये सारे इस सारी डिफरेंट स्टेप्स पे आपको कम्युनिकेशन चाहिए होती है, जो ईमेल और एसएमएस दोनों मस्ट हैं। तो ये आपको ये एक कॉस्ट आपकी एसोसिएटेड होगी अगर आप इंडिविजुअली अपना स्टोर चला रहे हैं। उसके अलावा शिपमेंट आप कैसे कर रहे हैं, आप कोई थर्ड पार्टी कंपनी यूज कर रहे हैं तो उसकी एपीआईज आपको उनसे कनेक्ट करनी होगी। आपको जो भी ऑर्डर आपके स्टोर पे आया है वो आपको शिपमेंट कंपनी को भेजना होगा, इफ यू आर यूजिंग सम एनी थर्ड पार्टी सर्विस, शिपमेंट सर्विस। और अगर आप अपनी शिपमेंट रन कर रहे हैं, आपके अपने राइडर्स हैं, तो ऑब्वियसली आपको उसकी कॉस्ट भी अपने पास ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये इंडिविजुअल स्टोर से रिलेटेड है। जब मैं अपना ब्रांड खुद चला रहा हूँ, मैंने कोई सर्विस नहीं ली हुई, कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल नहीं लिया हुआ, व्हेन आई गो ऑन सब्सक्रिप्शन मॉडल, तो ये कम्युनिकेशन की जो कॉस्ट है ईमेल की और एसएमएस की, वो आपको नहीं देनी पड़ती, क्योंकि मोस्टली वो आपकी मंथली कॉस्ट में कवर कर रहे होते हैं। जो जो भी प्लेटफॉर्म है वो आपको ईमेल और एसएमएस खुद प्रोवाइड कर रहा होता है। शिपमेंट आपकी जिम्मेदारी होती है, आपको यू हैव टू डिलीवर द प्रोडक्ट टू द एंड कस्टमर बाय योरसेल्फ। मोस्टली प्लेटफॉर्म्स आपको ये चीज नहीं देते और देंगे भी नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि वो कंट्री टू कंट्री स्पेसिफिक होता है। अच्छा, जब आप व्हेन यू टॉक अबाउट यू नो going to the marketplace and selling your product as a seller on some marketplace, so at that time, in this situation, mostly you don't need anything. जो marketplace है वो आपसे, उसका मॉडल क्या है, इट डिपेंड्स कि वो आपसे मंथली चार्ज कर रहा है या वो एवरी प्रोडक्ट परचेज पे कमीशन चार्ज कर रहा है, जैसे अमेजोन करता है, या और डिफरेंट ब्रांड्स करते हैं। वो मार्केट प्लेस, अमेजोन इज अ मार्केट प्लेस बाय द वे। तो वहां पर शिपमेंट भी वो आपको ऑप्शन देते हैं कि शिपमेंट भी वो करें, वो आपको शिपमेंट की सर्विस देंगे, वो आपको ईमेल, एसएमएस एंड एवरीथिंग जो इंटीग्रेशंस हैं उसकी सर्विसेज वो आपको प्रोवाइड करेंगे। बट ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट होगी, तो हर प्रोडक्ट, और अमेजोन मोस्टली 30 to 40% प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट का, जिस पे आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसका 40% वो अमेजोन रख रहा होता है। बट देन वो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स या जो इंटीग्रेशन और जो भी आपके लिए पेन पॉइंट्स हैं वो सब रिजॉल्व करके दे रहा होता है, कि एंड टू एंड वो आपके प्रोडक्ट को, अगर वो कहीं से शिप हो रहा है तो वो आपके प्रोडक्ट को अपने पास अपने स्टोर्स में भी लाएगा, शिप भी करेगा, सारी की सारी कम्युनिकेशन भी हैंडल करेगा। बट ऑब्वियसली उसकी उसके अगेंस्ट आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप कितना बजट है आपका, क्या आप मंथली रनिंग बिजनेस है और आप मंथली जो है वो पे कर सकते हैं, तो आप इस तरह के मॉडल पे जाएंगे, सब्सक्रिप्शन पे या फिर मार्केट प्लेस। इफ यू हैव अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ह्यूज बजट ऑलरेडी बिफोर लॉन्चिंग योर ऑनलाइन बिजनेस, देन यू कैन डू दिस एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन या। ठीक है, साउंड्स गुड। तो अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी आने लगे हैं, लेकिन मैं पहले अपने सवाल कंप्लीट कर लूं, फिर यू कैन गो वी कैन गो टू द ऑडियंस क्वेश्चंस। अच्छा, अगर कोई बिजनेस ये कहता है कि नहीं, मुझे ई स्टोर बनाना है लेकिन वेब की जगह एक मोबाइल ऐप बनानी है, तो हम ये कैसे डिसाइड करें कि व्हाट विच वन इज द बेटर वे टू गो? शुड वी डेवलप अ वेब बेस्ड ई स्टोर और गेट अ मोबाइल एप्लीकेशन? और अगर वेब बेस्ड ई स्टोर है तो क्या उसमें रिस्पॉन्सिवनेस की क्या वेटेज है? डू वी नीड अ रिस्पॉन्सिव स्टोर? व्हाई एंड व्हाई नॉट? देखिए, in any case, we need a web store. In any case, if we are planning to, go for the mobile app, and we have the forecast that most of the users will be mobile user who is actually installing the app and doing purchase from there. Still, आपको एक बैकएंड से चाहिए होता है जिस की पूरी ट्रांजैक्शंस मैप हो रही हो, वहां पर आपका एक एडमिन पैनल एट एनी कॉस्ट आपको चाहिए होता है, जिस पर जो सेलर है वो लॉग इन करे और वो अपनी ट्रांजैक्शंस देखे कि क्या परचेज हुई हैं, वहां पे अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड करे। तो इन एनी केस वेब तो आपको चाहिए, वो बेशक खाली एडमिन पैनल हो। मगर जब आप वेब
डेवलप कर ही रहे होते हैं तो फिर आप कस्टमर फेसिंग भी डेवलप साथ साथ कर लेते हैं, ठीक है। बट रिस्पॉन्सिव होना तो मस्ट है, मतलब ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, आजकल के कोई भी वेबसाइट विदाउट रिस्पॉन्सिव चल सकती है इस वक्त, ठीक है। तो अच्छा, तो क्वेश्चन वाज आई अज्यूम के ऐप की डिमांड कितनी है, यानी वेब खाली चल तो देखिए वेब तो आपको होना ही होना है, अगर आपकी ऐप नहीं भी है तो एक्चुअली आप पूरा का पूरा बिजनेस वेब पे चला रहे हैं। वी हैव different example customer who don't have the mobile app but they are doing very good. In New Jersey, our meaties, the customer meaties, who is selling online halal meat, they don't have the mobile app, but they are doing a very good business, and especially in these days, because their website, their online store is completely responsive. But that's a plus. If we have the mobile app, it's a plus because whenever we go and performance when we open the website on our mobile, the performance and the user experience is not that good comparing to the app. So it is good that we have to have the app installed, but sometimes people think that okay, if they are going to buy something one time or two time, why do they would install a app for that purpose. But it's good. This is good for marketing perspective as well, and users, which are your and the recurring customers. For recurring customers, they always need a app. If I have to buy a, suppose I have to buy meat every week. So for those type of customers, the app will works very smartly. They will install the app, and all the time they will just open it and uh, order the previously saved order. So that's it. So the web works well, but app is a plus. Okay, sounds good. अच्छा, we have a question from Junaid Ali. He is saying कि जैसे हमारे पास different platforms हैं, Shopify, Magento, BigCommerce, तो हर प्लेटफॉर्म की एक अपनी of course कुछ characteristics होंगी, कोई context होगा जिसके अंदर वो यूज होता है। तो Hmm. आपके ख्याल से वो क्या है, मतलब which kind of business would want to pick Shopify or Magento or BigCommerce? Magento is for business owners who wants to develop their own brand or their own store. So no subscription model available over there. If a company has the IT team who knows how to customize Magento, how to create a store on Magento, then Magento is good because it's free. The community edition is free, but it needs a pretty good skills to create a store and customize it. If you don't need any customization, you don't need a specific stuff for your business, then Magento is good. But another thing for the Magento is it needs huge resources when we talk about the hosting, you know so if you have the team, IT team, Magento already have the Magento experience, the Magento is good because there is no associated monthly cost or recurring cost. There is always a one-time cost. Most of the time, it's on one-time cost. Shopify is a platform which is good for small businesses who can um, ऐसे businesses जो के monthly एक subscription fees दे सकते हैं. I know $20, $40, $100. It all depends on the features we are buying from Shopify. So वो एक SaaS product है, software as a service. आप जाएं अपना स्टोर बनाएं, मंथली फीस दें, वो आपको आपका स्टोर क्रिएट कर देते हैं, उसको आप कस्टमाइज करें और अपने प्रोडक्ट सेल करें. तो Shopify is good in that scenario. Magento is good for your own brand, but you need a team for that, or some consultancy company who actually host and customize your Magento. Uh, Regarding BigCommerce and WooCommerce, similar to Magento, need a team to build, but they are not that heavy comparing to Magento. Magento contains a lot of features which is already plug and play and provided with the initial installing of the Magento. मतलब आप Magento install करेंगे, आपको बहुत सारे features already मिल जाएंगे जो कि Magento का part है.
मगर वो कॉमर्स और बिग कॉमर्स थोड़ा सा आई वुड से कि मैजेंटो से मुकाबले में उनमें फीचर्स थोड़ा सा कम है, बट उनमें भी वही है कि आप अपने स्टोर के लिए उसे यूज करें. आई थिंक जुनेद should get the answer. जुनेद इज सेइंग कि फॉलो अप क्वेश्चन है कि क्या हम शॉपिफाई को अभी इस टाइम पे मतलब in this pandemic situation can he start his Shopify store? I think you can. कि तो मैं भी आपको जवाब दे सकती हूँ, कमर की जरूरत नहीं है. uh, there is another question from Masood. Can you please tell us about the estimated cost of developing a store, and how much does it cost to get a monthly SMS or email subscription service? A relative question. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपने ब्रांड पे जा रहे हैं. अगर अपने ब्रांड पे जा रहे हैं तो आप आई एज्यूम मार्केट प्लेस तो आप नहीं बना रहे होंगे. आप अपने ब्रांड पे जा रहे हैं, अपना स्टोर बना रहे हैं, तो आप किस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, ये एक पहला क्वेश्चन है. अगर आप वही बात शॉपिफाई को यूज कर रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं करना, आप स्टोर अपना एक दिन में खड़ा कर सकते हैं. आपको मंथली सब्सक्रिप्शन देनी है जो कि वेरी करती है जो भी आप उनके फीचर्स बाय कर रहे हैं. तो इट probably I remember $50, $100, $150 पर मंथ की शॉपिफाई की कॉस्ट है. मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, आप शॉपिफाई इस पे जाके देख सकते हैं. मगर अगर आप जो है वो अपना ब्रांड मैजेंटो पे या वो कॉमर्स पे किसी पे भी आप खड़ा करना चाह रहे हैं, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच कस्टमाइजेशन यू नीड. अगर आपके पास एक बहुत ही बेसिक सीओडी लेवल यानी क्या कैश कैश ऑन डिलीवरी रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको मैजेंटो या वो कॉमर्स ऑलरेडी देते हैं. आप जाएं, आप सिर्फ उसको जो है ना किसी भी कंसल्टेंसी सर्विसेज से उसको आईटी कंसल्टी सर्विसेज से उसको होस्ट करा दें और उसको कॉन्फ़िगर करा दें. तो प्रॉब्ली विद लाइक $1,000, $500, ऑल डिपेंड्स ऑन $1,500, इसके अंदर अराउंड जो है ना कंपनीज आपको ये पूरा होस्ट कर इनिशियल कॉस्ट में दे देंगी. उसके बाद आपकी मंथली कॉस्ट तो है, जहाँ जहाँ भी आपने होस्ट किया है, तो आपकी प्रॉब्ली $70-80 पर मंथ की जो है ना आपकी होस्टिंग की कॉस्ट है. सही है. अगर आपने एक डेडिकेटेड होस्टिंग ली हुई है, अगर आपने शेयर्ड होस्टिंग ली हुई है, तो आपकी $10 $15 पर मंथ की कॉस्ट होती है. बट उसमें ऑब्वियसली ज्यादा लोड पे प्रॉब्लम आती है अगर आपके पास कंकरेंट यूजर्स आ जाएं. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन आप किस तरह के स्टोर पे जा रहे हैं. आप सब्सक्रिप्शन पे जा रहे हैं तो यू शुड कंसिडर लाइक $150, 100 मिनिमम $100 to $150 पर मंथ. ओके. और वो भी डिपेंड करता है, उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं. कितनी कितनी स्पेस वो आपको दे रहे हैं, कितनी बैंडविड्थ दे रहे हैं, आपको कितने प्रोडक्ट्स अपलोड करने का ऑप्शन दे रहे हैं. आई अज्यूम आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी. जी जी, we can hear you. ओके. सो बहुत सारे पैरामीटर, जो भी मंथली सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे ना आप, तो आपको पैरामीटर्स पे बिलिंग होती है. और यहाँ पे जो है ना, ये कौन है ये एक नेगेटिव पॉइंट है सब्सक्रिप्शन मॉडल पे, क्योंकि वो आपको डिफरेंट पैरामीटर्स पे बिलिंग कर रहे होते हैं. तो अगर मैं कहता हूँ मैं 10 प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकता हूँ, वो आपसे कहेंगे $50 लेने पर मंथ. मैं कहता हूँ मेरे पास 50 प्रोडक्ट्स है, वो कहते हैं आप $150 पर मंथ पे आ जाए. यहाँ पे जो है ना प्लस पॉइंट होता है आपके अपने स्टोर का, क्योंकि आपका अपना स्टोर है, वो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो हाई है, मगर you can do anything you want. You can upsize the server, you can upsize the memory, you can upsize the storage, you can upload as many products as you want. आप जितने प्रोडक्ट्स चाहें अपलोड कर लें, आप उसके अंदर जितनी इंटीग्रेशंस चाहें एज पर योर बिजनेस नीड, वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं. सब्सक्रिप्शन मॉडल में लिमिट होती है. दे कैन से टू यू, क्या आपको कह सकते हैं कि भाई हाँ भाई ये अवेलेबल नहीं है. हम जो है फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ, वी आर सिटिंग पाकिस्तान, यहाँ पे जो है ना टीसीएस एक एक बिग कंपनी है. उनसे इंटीग्रेशन चाहिए आपको. अब शॉपिफाई पे हो सकता है इंटीग्रेशन अवेलेबल ना हो, तो आपको अपने स्टोर में अगर इंटीग्रेशन देनी है शिपमेंट की, तो आप अपने इंडिविजुअल स्टोर जो कि मैजेंटो पे या वो कॉमर्स पे बना हुआ, यू कैन डू दैट. बट सब्सक्रिप्शन मॉडल में प्रॉब्ली ये लिमिटेशन आपको मिल जाएगी कि आप पेमेंट गेट पे जैज हैं, इजी पैसा है, प्रॉब्ली वो वहाँ अवेलेबल ना हो सब्सक्रिप्शन मॉडल में. बट आप खुद से आपका जो अपना स्टोर है उसमें आप इस सारी चीजों को इंटीग्रेट कर सकते हैं. बट ऑब्वियसली यू नीड आईटी
people to do that. जुनेद, आपको जवाब मिला मेरा? जी जुनेद खुद तो नहीं बता सकते। Anyway, अच्छा, अब आपने कुछ जिक्र किया अभी कुछ मार्केट प्लेसेस का या ई स्टोर्स का जो आपकी टीम ने डेवलप किए हैं, तो मुझे थोड़ा सा शायद आप उनके बारे में बताएं कि किस इंडस्ट्री से रिलेटेड थे, कौन क्या मार्केट थी, उनकी ऑडियंस क्या थी, थोड़ा सा क्लाइंट्स के बारे में इफ यू कैन टेल अस, ताकि लोगों को पता लगे एक्सपीरियंस लेवल और किस तरह की प्रोडक्ट्स और प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में तीन काम चार किए मुझे जाते हैं। अभी याद आ रही हैं, जैसे अलबुराक ऑनलाइन हमने डेवलप किया था। हमारे जो एक फ्रेंड थे, वो उनका एक ऑनलाइन क्लोथिंग सेलिंग का बिजनेस था, तो हमने इनिशियली उसको डेवलप किया। वो मेजेंटो बेस्ड था, उसमें जो भी कस्टमाइजेशन थी हमने की। उसके बाद फिर हमने एक बड़ा प्रोडक्ट जो डेवलप किया, यूएस बेसिक कंपनी है मीटीज, मैंने अभी एग्जांपल दी, उसकी एक रेफरेंस दी एक्चुअली, कि वो हलाल गोश्त सेल करते हैं पेनिसलाविया में, न्यू जर्सी में, न्यूयॉर्क में। तो उनका एक बहुत बड़ा स्टोर है, वो मीटीज के नाम से, मीटीज.com। वो भी मेजेंटो बेस्ड है, उस पर भी बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन थी, बट दे हैव द इन्वेस्टमेंट, दे हैव द टीम, सो दे वुड गो विद देयर ओन ब्रांड, तो वो हमने मेजेंटो पे डेवलप किया। उसके अलावा हमने ईवा ईवा क्रॉप एक कंपनी है जो अमेजोन में अपने प्रोडक्ट सेल करती है। दे हैव ट्रैवलिंग यूटेंसिल्स, दे सेल ट्रैवलिंग यूटेंसिल्स ऑन अमेजोन, तो उनका भी अपना एक स्टोर है। वो भी हमने मेजेंटो पे, बेसिकली हमारी एक्सपर्टीज मेजेंटो वो कॉमर्स पे, तो हमने मेजेंटो पे वो स्टोर डेवलप किया। ये तीनों स्टोर जो थे ये इंडिविजुअल ब्रांड थे। इसके अलावा हमने एक मार्केट प्लेस अतलूब के नाम से बिल्ड की है फॉर सऊदीया मार्केट। So it's very similar to what we have like Daraz in Pakistan. So sellers go over there, list their products, upload their products in both languages, in Arabic and in English, और फिर वो प्रोडक्ट जो हैं वो स्टोर पे नजर आने लगते हैं। तो वो एक ओपन प्लेटफॉर्म है, एक ओपन मार्केट है जिस सऊदीया में, ओपन मार्केट मींस ऑनलाइन मार्केट हमारी अतलूब के नाम से, जिसमें सेलर्स रजिस्टर होते हैं। वो फ्री रजिस्ट्रेशन है, एक कमीशन बेस्ड, वो जो भी सेल करते हैं उसमें कमीशन देते हैं। अच्छा, इन सब से हटके ना हमने एक सब्सक्रिप्शन मॉडल भी के सऊदीया मार्केट में बनाया। दैट इज समथिंग, यू नो a very good idea, very good initiative in the market. It's been like 1 year ago we have built this product where anyone can create their own store on the fly. Like in 10 minutes, they come to our website. They just fill a form, mention which domain they want to. Like if I want to create my store, my specific branded store, using my name, so kamar@kamar.asiano.net. So we create the store with the subdomain name, whatever the seller wants, and that's also a subscription model, like Paiza.asiano.net. Asiano is actually the main store, so and we can create as many seller stores as we want to. So Pfizer.asiano.net or Kamar.asiano.net. So every seller can have their own brand, which is hosted by us, which is maintained by us. Okay, they just need to, उनको बस इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो आए, वो प्रोडक्ट अपलोड करें, अपना लोगो XYZ चेंज कर लेते हैं। वो थीम सेलेक्ट करते थे, 6 से 8 की डिफरेंट थीम्स थी, हम उन्हें थीम्स देते थे ऑप्शन। और ये मंथली सब्सक्रिप्शन भी थी, फ्री भी थी। फ्री में हमने 15 प्रोडक्ट्स डाले थे, और बाकी जो सब्सक्रिप्शन पेड सब्सक्रिप्शन थी उसमें अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स पे जा रही थी। तो हमने जो ओवरऑल हमारी आज की टॉक रही ना, उसमें हमारा एक्सपोजर सारे एरियाज में। हमने सब्सक्रिप्शन मॉडल भी बिल्ड किया है सऊदीया मार्केट में। ऑब्वियसली सऊदीया मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो, मगर सऊदीया मार्केट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो मल्टीलिंगुअल भी है, तो दैट इज अनदर फीचर which we have provided to our customers. तो हमने सब्सक्रिप्शन मॉडल भी प्रोवाइड किया है, सब्सक्रिप्शन मॉडल इन द फॉर्म ऑफ specific domain whatever the seller wants to। हमने मार्केट प्लेस भी प्रोवाइड किए डेवलप करके अपने कस्टमर्स को, सेलर्स को। हाँ, हमने इंडिविजुअल स्टोर्स भी दिए हैं। तो वट एवर the demands in this e-commerce industry, there are three different demands ना।
इधर मेरा अपना स्टोर होगा, या मैं मार्केट प्लेस बना दूं और उसमें लोग आ जाएं, या मैं एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चला जाऊं जिसमें मैं अपने कस्टमर्स को उनका स्पेसिफिक डोमेन पे उनको जो है ना सर्विस दूं, जिसमें वो अपना स्टोर अपना सेपरेट स्टोर बना सकें मंथली सब्सक्रिप्शन पे। ये सारी की सारी ई कॉमर्स जो मॉडल्स हैं जो इस वक्त अवेलेबल हैं, वो सब हमने अपने कस्टमर्स को दिए हैं। हमारी एक्सपर्टीज इन सारे एरियाज में है, हमारी रिसोर्सेज, दे हैव बीन वर्किंग on all these models already. We have the products available for our customers. Obviously वो customer specific हैं, तो we can't launch with our name. Yeah. ओके। अच्छा, इसके अंदर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि सर्विसेज सेल कर रही हो इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट? हैव यू वर्कड ऑन दैट, जहाँ पे पीपल कैन बाय सम सर्विस और बुक अ सर्विस और यू नो ask someone to come do some chores at their homes, जो आजकल रनर टाइप मॉडल्स हैं जहाँ पे people are hiring somebody to सर्विसेज, get things हाँ, सर्विसेज से रिलेटेड जो है ना, हमने एक अलग से एक हमारा वेब एंड मोबाइल वर्जन था। आप उसको ई कॉमर्स कह सकते हैं, बट दैट्स नॉट ट्रेडिशनल वे ऑफ परचेजिंग स्टोर, परचेजिंग सर्विस। वो हमारी एक प्रोडक्ट था ईशाई, जिसको हमने उसकी उसकी मोबाइल ऐप थी, एक कस्टमर और एक कस्टमर ऐप और एक सर्विस प्रोवाइडर ऐप। सो वट एवर सर्विस यू नीड, यू जस्ट ओपन द ऐप, you say okay, you need a AC technician, आपको AC technician चाहिए, you can find there a list of all the AC technicians comes in front of you, तो आप उसमें से किसी को भी सेलेक्ट करें, तो वो जो टेक्नीशियन उसके पास सेपरेट ऐप है, उसके पास रिक्वेस्ट जाती है और वो फिर वो उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है, और फिर एक कम्युनिकेशन होती है वाया चैट, और फिर सर्विस प्रोवाइडर आपके डोर स्टेप पे आता है, आप उससे सर्विस लेते हैं और उसको फिर पे करते हैं। इट्स वेरी सिमिलर मॉडल लाइक वी हैव in Uber or in Careem, but that is specific to the the for ride, specific to the ride। बट यहाँ पर हमने ये मॉडल जो है वो, और ये पूरा का पूरा फ्लो वेब पे भी मौजूद है कि आप वेब पे जाएं, सर्विस प्रोवाइडर फाइंड करें और उसको रिक्वेस्ट दे दें। बट वो कन्वेंशनल जो ई कॉमर्स स्टोर्स हैं, उस तरह का फ्लो नहीं है ऑब्वियसली। ओके, सब सर्विस प्रोवाइडर नजर आ रहे हैं पिक्चर्स की शक्ल में, ऑब्वियसली उसमें आपको सर्चिंग मैकेनिज्म है सॉर्ट ऑफ उसी है। आप जाएं, आप जो है वो फाइंड करें, उनको रिक्वेस्ट दें, दे हैव द लेवरेज के इधर वो रिजेक्ट करें या उसको एक्सेप्ट करें। अब एक्सेप्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वो फिर बताते हैं कि वो कितने बजे आएंगे, फिर वो एक पूरी कम्युनिकेशन होती है, फिर आप उसके अंदर उनको ट्रैक कर रहे होते हैं मोबाइल ऐप में कि वो किस जगह पे हैं, किस लोकेशन पे हैं, कितनी देर में पहुंच रहे हैं। तो वो भी हमने जो है ना सऊदी मार्केट और मिडिल ईस्ट मार्केट के लिए एक्चुअली बिल्ड किया है। राइट। तो वो सर्विस रिलेटेड ही है। मेरे पास दो क्वेश्चंस और हैं ऑडियंस के। दोनों टेक से इतना रिलेटेड नहीं है, थोड़ा बिजनेस से रिलेटेड है। एक सवाल ये है हम्म। कि आप कैसे वेंडर्स को कन्विंस करेंगे कि आपकी मार्केट प्लेस पर आकर वो अपनी चीजें शोकेस करें, मतलब व्हाट आर यू ऑफरिंग देम, पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि एक मार्केट प्लेस खोलना एक ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया नहीं है इन टुडेज वर्ल्ड, एवरीबडी इज डूइंग इट। तो आप अपने अपने स्टोर को या अपनी मार्केट प्लेस को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं दूसरी मार्केट प्लेस? देखिए, मार्केट प्लेस, वी आर एक्चुअली आईटी कंसल्टेंसी कंपनी ना। हम आईटी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। वी आर नॉट इन दिस बिजनेस, राइट। जो भी हमसे अगर सजेशन लेता है भाई मार्केट प्लेस में ओपन करूं, खोलूं, और उसके पीछे क्या रीजंस हैं, तो ऑब्वियसली वो जो बिजनेस में जा रहा है उसको पता होगा कि भाई मार्केट प्लेस वो क्यों चाह रहा है करना और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। वी आर नॉट इन दिस स्पेसिफिक इंडस्ट्री जिसमें हम ये जाने कि भाई क्या प्रोडक्ट सेल करना चाहिए क्या नहीं। हाँ, मगर ये है कि देखिए, मार्केट प्लेस की एक सेपरेट नीड होती है। वो नीड ये है कि अगर आपके पास डजन्स ऑफ सेलर्स हैं और आप एक प्लेटफॉर्म चाहते हैं जिसमें सारे सेलर्स म्यूचुअली किसी एक प्लेटफॉर्म पे आके अपने प्रोडक्ट को सेल करें, तो वो बेहतर अप्रोच होती है। रादर वो 10 स्टोर्स अलग अलग बनाएं और अपनी अपनी मार्केटिंग करें। उससे बेहतर ये होता है कि वो आ, एक सेंट्रलाइज इन्वेस्टमेंट आप उस मार्केट प्लेस पे लगाएं, उसको पॉपुलर करें,
और वो एक सेंट्रलाइज मार्केटिंग से लोगों के पास जाए। और दूसरा रीजन ये भी होता है कि इफ आई नीड टू बाय 10 प्रोडक्ट्स, तो मैं 10 जगहों 10 साइट्स पे जाके नहीं खरीदूंगा। इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल अमेजोन या दराज है। ऑलरेडी मैं अमेजोन पे जाता हूँ, अमेजोन पे मैं हर चीज, मोस्टली हर चीज मैं वहां से फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मुझे कस्टमर पर्सपेक्टिव से मार्केट प्लेस का मेन रीजन यही है, जो कि जिसकी वजह से लोग मार्केट प्लेस को पे बिल्ड मार्केट प्लेस बनाते हैं और सेलर्स को ऑन बोर्ड लेते हैं, वो ये है, इट्स अ सिंगल प्लेस वेयर एनी कस्टमर कैन फाइंड एनीथिंग, और फिर वो उसको उसी जगह पे रहते हुए खरीद ले। तो उस जो वारंटी मार्केट प्लेस जो होती है, इससे वो एक ही जगह से उसको वारंटी भी मिल रही है, एक ही जगह से उसको शिपमेंट भी मिल रही है, एक ही जगह से उसको। तो वो एक पेन पॉइंट कस्टमर के खत्म हो गए ना। मैं 10 साइट्स पे जाऊं, 10 साइट्स की अलग वारंटी है, अलग डिलीवरी सर्विसेज हैं, अलग जो है वो उनके अलग उनके दर्द सर हैं जो मुझे बर्दाश्त करने पड़ेंगे। रादर मैं एक ही सेंट्रलाइज मार्केट प्लेस पे जाता। तो ये मेन नीड है सेंट्रल मार्केट प्लेस की। और दूसरा, सेलर्स की भी अपनी नीड है ना। सेलर क्यों अपने लिए इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग पे या शिपमेंट पे इन जगहों पे लगाएंगे? उनको मार्केट प्लेस चाहिए जहां पे वो जाएं, वो मंथली सब्सक्रिप्शन पे या कमीशन बेस्ड मॉडल पे अपने प्रोडक्ट्स को रजिस्टर कराएं, और सिर्फ प्रोडक्ट्स पे फोकस करें। उस उनकी डिलीवरी पे, मार्केटिंग पे, इन पे उनका फोकस हट जाए, ताकि वो स्पेसिफिक हो जाए कि उनको कस्टमर को एक बेहतर प्रोडक्ट देना है, दैट्स इट। तो ये नीड होती है। और आई एम नॉट सेइंग कि इट्स अ यूनिक आइडिया मार्केट प्लेस बनाने का। ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ मार्केट प्लेसेस अवेलेबल इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड। अब तो ये जो वॉर है, वो तो ये है कि आप कितना कितना लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि भाई ये मार्केट प्लेस आपकी नीड है। दैट्स एक्चुअली अ मार्केटिंग वॉर, नॉट अ नॉट यू नो टेक्निकल वॉर, आई वुड से। राइट। एक और क्वेश्चन आया है कि ई कॉमर्स स्टोर्स और मार्केट प्लेसेस की एक बहुत बड़ी नीड है CRMs की। सो व्हाट व्हाट डू यू हैव एनीथिंग, एनी आइडियाज ऑन दैट? कोई आपके पास कोई ऐसी सर्विस, कोई प्रोडक्ट जो कि लोकल, जो हमारे रिटेलर्स हैं या ई टेलर्स हैं, दे कैन यूज फॉर इंक्रीजिंग देयर कस्टमर रिटेंशन? देखें, इस क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें अगर आप अपना स्टोर बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास ऐसे प्लगइन्स जरूर होते हैं, अवेलेबल होते हैं, जिसमें आपको वो CRM रिलेटेड सपोर्ट देते हैं। कस्टमर रिटेंशन हो गई, या ऑर्डर मैनेजमेंट, ये रिटर्न मैनेजमेंट हो गई। ठीक है, वो ऐसे प्लगइन्स होते हैं। अगर आप अपना स्टोर मैजेंटो पे बना रहे हैं, वो कॉमर्स पे बना रहे हैं, तो उसमें ऑब्वियसली कॉस्ट आपकी लगती है, क्योंकि जब आप यू नो ज्यादा से ज्यादा फीचर्स पे जाएंगे, तो the cost to benefit ratio, if you need more benefit, you have to spend cost. That's the things operate. तो वो आपको CRM के प्लगइन्स लेने पड़ेंगे। अच्छा, अगर आप जाते हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल पे, वहां पर भी यही है कि आप सब्सक्रिप्शन मॉडल में आपकी मंथली फीस, मंथली सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको वो CRM के फीचर्स मंथली सब्सक्रिप्शन पे ही देंगे। तो जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो मंथली सब्सक्रिप्शन देते हैं, दे हैव देयर प्लगइन्स ऑलरेडी अवेलेबल फॉर CRMs, फॉर कस्टमर रिटेंशन एंड रिटर्न मैनेजमेंट। मगर उसके लिए ऑब्वियसली कॉस्ट एसोसिएटेड है। जब आप मार्केट प्लेस पे जाते हैं, तो ये CRM रिलेटेड मोस्टली बड़े मार्केट प्लेसेस जो हैं ओनर्स, वो आपको ये चीजें कुछ हद तक प्रोवाइड करते हैं। उसमें वो कस्टमर्स की जो क्यूरीज होती हैं, कस्टमर्स के जो कंसर्न्स होते हैं, वो आप तक उनके पास एक स्टेप बाय स्टेप इस तरह से मॉडल होता है कि पहले वो कंसर्न उनके पास आता है, फिर वो सेलर को अप्रोच करते हैं, सेलर को जो है अवेयर कराते हैं कि भाई प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है, या डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम है। मगर मार्केट प्लेस में आसानी ये होती है कि जो स्मॉल सेलर्स हैं, उसको इतना ज्यादा फोकस इसे ये में नहीं करना पड़ता। कुछ ना कुछ CRM रिलेटेड सपोर्ट अच्छे मार्केट प्लेस जिन जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, वो आपको देते हैं। मगर अगर आप अपना ब्रांड है, तो ऑब्वियसली उस अपने ब्रांड में आपको ये कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी, ये इनकर होगी ये कॉस्ट। राइट। Do you have any relevant service for the local market in terms of CRM के हवाले से? कोई प्रोडक्ट ऐसा हो जो आप रेकमेंड करना चाहें?
हम तो अपना ही प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे। ठीक है, ACRM हमारा एक प्रोडक्ट है, एसियानो से रिलेटेड, ACRM ना, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एसियानो कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। उसके अंदर हमारे पास यू कैन कनेक्ट इट, उसके हमारे कस्टम कनेक्टर्स हैं, वो हमें बनाने पड़ते हैं जब भी रिक्वायरमेंट आती है कस्टमर की। वो मेजेंटो से वो जो है वो हम जो है आपको अपने मेजेंटो से कनेक्ट कर देते हैं, वो हम अपने वो कॉमर्स से कनेक्ट कर देते हैं। उसमें होता ये है कि जो भी ऑर्डर्स आते हैं वो ऑर्डर्स की इंफॉर्मेशन कस्टमर की हमारे पास सिस्टम में सेव हो जाती है, ताकि कस्टमर जो है, जो भी सेलर है, वो उस कस्टमर को मार्केटिंग ईमेल्स पोस्ट कर सके, SMS पोस्ट कर सके। जब भी कोई प्रोमोशनल प्रोडक्ट्स उसके आए तो वो हमारे सिस्टम से, ACRM से कनेक्ट करके वो मार्केटिंग ईमेल्स, उसमें टेम्पलेट बना सकता है, वो लैंडिंग पेजेस बना सकता है, और वो अपने स्टोर के साथ कनेक्ट कर सकता है। बट दैट इज स्पेसिफिक टू फॉर इंडिविजुअल स्टोर्स, फॉर इंडिविजुअल ब्रांड्स। ऑब्वियसली जब आप मार्केट प्लेस पे हैं तो वो तो आप उन्हीं के CRM से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें फिर हम कोई इंटीग्रेशन नहीं दे सकते। अगर आप सब्सक्रिप्शन मॉडल में, और यस वी प्रोवाइड इन सब्सक्रिप्शन, ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ जाती है, बट हम उसमें ACR अपना CRM की कनेक्टिविटी देते हैं। बट दिस इज समथिंग जो कि वेरी करता है कि आप किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे हैं, तो उसके हिसाब से हमें कस्टम कनेक्टर्स देने पड़ते हैं। Right. So we are done with all the questions. मुझे audience के भी कोई सवाल नजर नहीं आ रहे. So I just want you to maybe conclude in a few sentences, talk about your work maybe, या कोई last thoughts हो आपकी इस topic पे तो. लास्ट पार्ट बस ये है, देखें कि ये जो इस सिचुएशन में जो लोग अब ऑनलाइन परचेजिंग पे जा रहे हैं, जो कस्टमर्स हैं, ये देखें इरिवर्सिबल प्रोसेस है। पहले लोग डरते थे, उनको नहीं समझ आता था। पीपल थिंक मोस्टली लेडीज जो कि शॉपिंग करती हैं रिटेल में, शॉप पे जाके, उनका हमेशा ये पॉइंट होता था कि भाई हम ऐसे प्रोडक्ट कैसे बाय कर सकते हैं जिसको हम खुद से देख नहीं रहा है, टच नहीं कर रहा है, फिजिकली वहाँ मौजूद नहीं है। मगर ये फोर्सफुली इस वक्त ये जिस जो सिचुएशन खड़ी हुई है उसमें फोर्सफुली लोग मजबूर हुए हैं कि वो ऑनलाइन जाएं और प्रोडक्ट्स ऑनलाइन परचेज करें। तो एक जो जो लोग रिलेक्टेंट थे ना, वो इस एरिया में आ चुके हैं और दे हैव स्टार्टेड अ परचेजिंग ऑनलाइन। ठीक है, और इसके बाद ना अब वो जब ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं तो उनको उनके उनके अंदर से ये डर निकल गया है कि वो कैसा प्रोडक्ट खरीद, वो गलत प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि वो हर तरीके से प्रोडक्ट को देख सकते हैं, डिफरेंट व्यूज उनके सामने प्रोडक्ट के, वो उसे रिटर्न भी कर सकते हैं, वो कैश ऑन डिलीवरी पे भी जा सकते हैं। सो दे डोंट नीड टू पे एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर। तो ये सब के बाद ना, अब जबकि वो इस एरिया में आ चुके हैं, फोर्सफुली आए हैं, बट जब वो आ चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस बनना शुरू हो गया है, तो ऑब्वियसली दे वोंट गो बैक। कि ये सिचुएशन खत्म होगी तो ऐसा नहीं होगा कि वो वापस सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग खत्म कर देंगे करना। ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑफ देम जो एक कंफर्ट जोन में आ जाएगी, वो इस एरिया में मतलब अपनी शॉपिंग ऑनलाइन करती रहेगी। बेशक कि वो रिटेल इंडस्ट्री में या शॉप पे जाके भी परचेजिंग करे, मगर उन जो ये खौफ होता है ना लोगों का ऑनलाइन का, वो अब निकल गया है। उनको मजबूरन ही सही, बट ऑनलाइन शॉपिंग करने की आइडिया हो गया है कि वो अपनी चीजें खरीद सकते हैं जो जरूरत की हैं, और दे कैन डू, चाहे वो ग्रोसरी आइटम से लेके फैशन रिलेटेड स्टफ हो। तो दिस अब जब ये चीज इंशाल्लाह जल्दी ये सिचुएशन खत्म होगी, तो मोस्टली जो बिजनेसेस है ना, उनको स्टिल ये नीड रही है। ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन खत्म होने के बाद वापस सब कुछ ऑल जिनको ऑनलाइन की नीड नहीं थी वो नहीं है, कभी भी नहीं रहेगी। बल्कि इस सिचुएशन ने ये एक परमानेंट सिनेरियो बिल्ड कर दिया है कि ऑनलाइन स्टोर्स की नीड अब रहेगी, और वो परमानेंट लेवल पे चली गई है। क्योंकि एक लंबे टाइम तक लोग दे वुड बी रिलेक्टेंट टू गो physically on the shops to buy something. So if they get this, if they get the comfort, if they get the opportunity to buy online, they surely would go. So I would say, जो भी small business owners हैं,
जो या जो ब्रांड रखते हैं, जो ब्रांड्स हैं ऑब्वियसली उनके पास तो स्टोर्स हैं मोस्टली के पास, मगर जो मिड साइज या स्मॉल ओनर्स हैं, बिजनेस ओनर्स, दे शुड गो इधर, इवन आप फेसबुक पे पेज से सेल करें, बट यू शुड हैव द ऑनलाइन प्रेजेंस। दैट्स द आई वुड से द लास्ट वर्ड्स के तौर पे इस मीटिंग के, आई वुड से कि वो ऑनलाइन प्रेजेंस पे जाएं, श्योरली जाएं। Right. So one more question है, ये लाइबा खान I think इनका नाम है. In current lockdown situations, do you guys provide stores where shopkeepers can sell their own products? तो इसका आंसर मैं दे देती हूँ. Yes, we do, and you can just write to us at support@iciano.net. Thank you so much, Kamar. We had quite a bit of थैंक्स अ लॉट, participants या here, and I'm seeing a lot of activity on Facebook as well, so that's good. Um, Thank you so much, and I'm going to end the live stream now. thanks a lot for every one of you, especially Faiza and all the audiences. Thank you. Okay, bye.